So, so again, string is basically a class and it behaves very much like a class. But since we are going to work a lot in strings, they have provided a few functionalities which work with strings but not with other classes. Okay, we are going to learn that. In fact, we can actually make our own string class if you want to. Okay, so and why we can do that? Because a string is basically a collection of characters. So you can define a character array. So a character array can be used as a string. Okay, so Java, it allows you to define character arrays, and then you can convert the character arrays into a string, and you can convert a string into back into a character array. You can do both ways, and we can do that ourselves if you want to. Okay, in fact, that can be a very good exercise, or that can be very good uh, assignment if I want to like let you really understand like how string works. Okay, so maybe that might show up. I haven't decided yet, so it may be that might show up. uh, anyway, so we will start with the string, like how string works. I'm going to introduce you to, I'm not going to introduce you all the functions, I'm going to introduce you some important functions. And then I'm going to show you a few examples how string works, how it makes programming a bit interesting. Okay. So first of all, I have defined uh, f string, which is first string, and this is the second string, so s string. Okay. So f string, it says this is line 1, and f string says this is line 2. Okay. And then if I want to print out, I write f string plus not really. So it will say this is line 1, and then it will add not really. Okay. And I have written some comments. No change in f string. Oh yeah. So what is happening over here is that when I write system.out print f string plus not really, what it will do, it will substitute the name of this variable with this string value. Okay, and then it will add to that substituted value this string value. So it will create a new string, but it will not change the main string, like the f string. It will not make changes to that. Okay, so it will take this part of the string, it will add this not really to that. Okay, so I am printing f string again. Okay, so just to show that, okay, this does not change the string, so the f string will stay the same. So I run this. If everything is okay, it will show me a lot of output. We will go up and see the output. So this is line 1, not really, because we had this is line 1 and then we added not really, and then I print out the f string, which shows me that nothing has changed to the first string. Okay. Then I write uh, f string is equal to f string plus s string. Okay. So what I'm doing over here, I'm more or less I'm doing the same thing over here. So it will substitute over here with the first string. It will substitute this value with the second string. It will add them both of these together. It will make a new string, and then it will store it back to the first string. Okay. So it will say this is line 1, this is line 2. So you can see over here, this is line 1, this is line 2. Okay, so it has joined the two strings together, and whatever value we got by joining these together, it stored that into f string. So now f string has the value of first string and second string combined. Okay, so we have changed the f string at this point. Okay? Simple enough, nothing remarkable. It just works. Okay, and then we write f string dot to uppercase. So you have a lowercase, which means lowercase alphabets. Small a, small b, small c. You have uppercase, which is capital A, capital B, capital C. So if you want to convert a small case into capital case, you use two uppercase. Okay. Yes, two uppercase. देखिए small case को upper में करना चाहते हैं तो आप dot to uppercase करें. So whatever string you have, since it's a class, it has given you some functions. So whatever string you have, you put the name of the string and then you put a dot. So then you will access the functions, the functionality that it returns to you. Okay. So yes, so it will convert this to uppercase. Okay, and
and again it will convert the string into uppercase, but it will not change the original string. So it will create a new string which is based on the original string, and it will return you an uppercase string. So the original string will stay the same. So if you see over here, I convert it into uppercase, and then I print the first string again. So we get the uppercase output here, and then I get the first string output over here, which is in the original form. So what is uppercase will stay uppercase, but what is lowercase, it will convert that into uppercase. ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि हमने असाइनमेंट्स की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की थी, उसमें यूजर से पूछते हैं यस और नो, ठीक है, उस वक्त भी कहा था अपर केस कर दिया कर। तो होता ही है कि यूजर जो है वो यस और नो कई तरीकों से लिख सकता है, वाई कैपिटल कर दे, ई स्मॉल कर दे, एस कैपिटल कर दे, वाई ई को कैपिटल कर दे, एस को स्मॉल कर दे, सब कुछ स्मॉल में लिख दे, ठीक है। तो इस तरह की कम्बिनेशन फिर आपको सारे कम्बिनेशन प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ज्यादा अच्छा क्या है कि उसका आप इनपुट ले लें, वंस यू गेट द इनपुट कन्वर्ट इनटू अपर केस and then compare it with the uppercase, ठीक है। तो जितना भी आगे पास इनपुट जैसे ही वो लिख दे तो वो उसकी जो भी इनपुट है उसको नलिफाई कर देगा, it will make it one input and then you can always easily compare it with the string that you have, ठीक है। तो उस तरह अपनी जो प्रोग्रामिंग लाइफ है ऐसी आसान कर सकते हैं। स्ट्रिंग का वैल्यू तो सेम रहेगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, क्योंकि we have joined f string and we whatever we have created over here we have saved into f string. We have not saved anything into S string, so the value of the S string will stay the same. Okay. Okay. Now this is simple enough. नजर आएगा मेरे से? Okay. This is simple enough. आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि स्ट्रिंग में एक फलाना वर्ड है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है. So if you want to find like which word is at which index, so it will give you that index. ठीक है, तो आगे सर्चिंग जरा सी आसान हो जाती है. ठीक है, आपको पता है कि इसमें पूरे स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं वर्ड आया हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करें. ठीक, तो इंडेक्स ऑफ दे रहा है, तो इसमें हम इधर आते हैं, हल्का सा स्क्रॉल करें. ठीक, तो कह रहे एफ स्ट्रिंग में लाइन कहाँ पे अपीयर करता है. ठीक, तो लाइन किस इंडेक्स पे आता है, तो वी कैन काउंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे लाइन आ रहा है ना. ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसमें 8 पे लाइन आ रहा है, तो ये आपको 8 यहाँ पे रिटर्न कर क्या 0 से स्टार्ट करें. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले वाला आएगा सिर्फ. ठीक है, क्योंकि आप देखें तो इसमें दिस इज लाइन 1 दिस इज लाइन 2 लिखा हुआ है. ठीक है, दिस लाइन 1 दिस इज लाइन 2, तो उसे पहले का देता है, तो जहां पे पहली बार अपीयर करेगा वहां पे कर देगा. अब क्वेश्चन आएगा कि दूसरा आप कैसे निकालेंगे, उसके तरीके हैं, कर सकते हैं. ठीक है, वो फिर आप ये करते हैं कि फिर आप जब सर्च करना शुरू करते हैं उसके आगे से सर्च करें. आप सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, उसे एक छोटा स्ट्रिंग बना लें, उसके आगे से शुरू आप उस तरह कर सकते हैं. मालूम किया जा सकता है, तो हम इस तरह की मैनिपुलेशन आज हम करेंगे. ठीक है, तो आपने ज़हन में बस एरेज को रखें कि जिस तरह एरेज काम करते हैं उसी तरह ये स्ट्रिंग काम करेंगे. इनका आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है आपस में एक दूसरे के साथ. ठीक है, और अगर आपको ये एरेज अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं, करेक्टर एरेज, ठीक है, तो अगर आप कभी फ्यूचर में अगर आप सी पे या सी पर जंप करेंगे तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो इसका तो ये समझना अच्छा है. आपको ये कहे कि हम तो शायद ना करेंगे सी पर, आपको नहीं पता. ठीक है, यू डोंट. तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरा अच्छा है, इसको समझ लें. इंडेक्स ऑफ प्री बिल्ड फंक्शन. जी देखिए, मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया. ठीक है, तो ये सारे फंक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्री बिल्ड फंक्शन इस्तेमाल. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं ना ये. अगर आपने सर्च करना हो तो सिंपल, जैसा मैं कहते हैं गूगल स्ट्रिंग जावा मैंने लिखा, ये आया हुआ है स्ट्रिंग जावा. ठीक है, अब यहाँ पे आगे बस स्कूल से जावा टी पॉइंट से भी आप कर सकते हैं. मैं नॉर्मली जो है मैं जावा W3 स्कूल्स पे जाता हूँ, ये नॉर्मली मैं इसको प्रेफर करता हूँ. आप इधर चले जाएंगे. तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेन की है, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स एक्चुअली एक्सप्लेन ओवर हियर. ठीक है, इसी में से कुछ मैंने पॉइंट्स उठाए हैं, चीज़ें भी वहीं से उठाई. ठीक है, तो आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ.
लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि आप स्क्रॉल करते हैं और कंप्लीट स्ट्रिंग रेफरेंस लिखा हुआ। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रिंग रेफरेंस पे आप जो जावा स्ट्रिंग मेथड्स रेफरेंस उस पर क्लिक करेंगे तो आगे पास ये सारे आगे पास मेथड्स आ जाएंगे जो कि जावा के स्ट्रिंग जो है जो क्लास है आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैं इसमें से सारे मैंने आपको नहीं बता रहा, मैं से कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे कवर करने बैठ जाए फिर तो चलता ही रहेगा। हो सकता है कि अभी मैं एक और इसका लेक्चर लूँ स्ट्रिंग्स का, उसमें और चीज़ें आपको बताऊँ। ठीक है, ताकि जैसी कि अच्छा एक नई किस्म की प्रॉब्लम दे दी उसको किस तरह इन फंक्शंस के जरिए से आप सॉल्व करें। ठीक, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना हैं, तो सब कवर नहीं करें, लेकिन आपको यहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो वही आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो हम सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको रेफरेंसेस पता हो कि आप फलानी चीज़ कवर चाहें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप रीजन के नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है तो उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे छोटी वन लाइन एक्सप्लेनेशन क्लिक करेंगे तो आगे पास उसके पास मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। जैसे कि इसमें कॉन्कैट का दिया हुआ है, कॉन्कैट का ये दिया हुआ है कि जैसे हम स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 करते हैं ना, तो उसमें आप क्या करेंगे कि कॉन्कैट में आप लिखेंगे स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्कैट डॉट स्ट्रिंग 2 उसमें लिख दें तो वो खुद ब खुद ज्वाइन कर देते हैं। दिया हुआ है फंक्शन, प्लस करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जो इसमें जो चेक करने वाला है वो ये है कि आप स्ट्रिंग 1 वही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप प्रिंट आउट लेके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस आगे ना सब चीज़ें दी हुई, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर आगे पास कोई समझ में ना आ रहा तो हमेशा रेफरेंस में जाके आप देख लें। ठीक, जैसे कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि वो सर तो बड़े लेजी हैं, सब कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, वो मसला ये है कि जैसे कि अगर मैं C++ में अगर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो उसकी जो किताब है एक्चुअली C++ का हैंडबुक है वो 18,000 पेजेस हैं उसके। ठीक है ना, तो हर चीज़ जो है ना वो कवर हो नहीं सकती। हाँ, वो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम जो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट चीज़ें या फिर एटलीस्ट जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ उसकी चीज़ें हम डिस्कस कर लें, बाकी चीज़ें आप पढ़ के उसमें खुद करें। ठीक, एक चीज़ याद रखें कि जो आप एटलीस्ट मैंने पहले भी रिपीट किया, लेकिन जो आप इधर यूनिवर्सिटी में आके आप जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको वो जो एक टर्म है कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग ये होता है टाइटैनिक। याद है टाइटैनिक क्या हुआ था उसके साथ? या आप ये ना कहिए टाइटैनिक का नहीं पता, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा। ठीक है, टाइटैनिक जो थी एक जहाज बनाया था, पानी का जहाज था, बहुत बड़ा था उस जमाने के 1919 था 1920 था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बहुत पुराना 1920 का था। उसे कहता था अनसिंकेबल। इतना बड़ा बनाया, इतने ये डूब ही नहीं सकता, हमने ऐसी इंजीनियरिंग की है। पहले ही ट्रिप में डूबे। हो गया था कि सामने आइसबर्ग आ गया था। ठीक है, आइसबर्ग जो होता है वो क्या होता है, बर्फ होती है जो कि पानी में होती है, और उसका ऊपर जो नजर आता है इतना सा हिस्सा नजर आता है, नीचे इतना बड़ा होता है जो पानी के अंदर होता है। ठीक है ना, आप अगर बर्फ को आप देखेंगे ग्लास में डालें, बर्फ जो पानी के ऊपर नहीं तैर रही, पानी के नीचे तैरती है, सिर्फ ऊपर उसका हल्का सा सिर्फ सर नजर आ रहा होता है। तो वो टाइटैनिक उससे टकराई, उसने ऐसा कट मारा कि वो पूरी टाइटैनिक डूब गई, हल टूट गया था, वो अल्टीमेटली टूट गया था। पहले तो क्रैक आए थे उसके अंदर, वो रेस्क्यू नहीं हो सके थे, वो डूब गया, काफी लोग मर गए थे उसके अंदर। तो टाइटैनिक फिल्म भी है, लोग वह अब तो एवेंजर्स के बाद जो थी सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, एवेंजर्स ने उसका थर्ड हो गई है, एवाटार। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अब तो थर्ड हो गई। हाँ, तो दे नो देयर मूवीज। ठीक है, तो अब वो थर्ड हो गई है। ठीक है, तो इसने बहुत पैसा कमाया। मैं कहता हूँ कोई बकवास सुनती, लेकिन ये जो ठीक है, ठीक फिल्म थी, लेकिन ये नहीं थी $1 बिलियन कमा दे, लेकिन चलो जो वट एवर। ठीक है, तो बात क्या हो रही थी? हाँ, तो उसकी हो रही थी बात कि टिप ऑफ द आइसबर्ग की। ठीक है, कि जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, वो आपको सिर्फ प्रिपेयर करता है कि व्हाट इज टू कम। तो मेन चीज़ ये होती है कि लैंग्वेज को आप पढ़ें और अपनी स्किल्स बनाएं, ताकि आप जो बाकी चीज़ें आपको रेफर की जाए वो पढ़ के आप खुद से सीखें। और ये होगा आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोई पता नहीं वो आ रहा है कि वेब की ये टेक्नोलॉजी आ रही है, स्विफ्ट आ रही है, और पता नहीं क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती। ठीक है? आपके इसमें हो सकता है कि ये हो कि एक
अगर कोई एक कोर्स आ जाए उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, आप कहेंगे हम प्रोजेक्ट उस लैंग्वेज में करेंगे, तो अगर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ठीक है बना लो, तो फिर आप बना लो। अदरवाइज इंस्ट्रक्टर कहेगा कि ये लैंग्वेज ऐसे ही आप बनाए और आपको उसी बनाना। लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो गई, कोटलिन हो गई है, रस्ट हो गई है, स्विफ्ट हो गई है, ठीक है, और फिर वेब असेंबली भी आ रही है, ठीक, बहुत सारी चीजें कवर हो नहीं सकती। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा जॉब्स कौन कौन सी आ रही हैं और कौन कौन सी पॉपुलर लैंग्वेजेस हो रही हैं, उसमें से आपने स्किल्स बनानी है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे पाइथन कवर नहीं होगी, किसी डेटा साइंस के कोर्स में कवर हो जाएगी, सही। तो ये चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी, खुद बनानी है, ठीक है। उसका और कोई तरीका नहीं है। हम भी अभी तक 20 साल हो गए हैं इसमें, अभी तक सीख रहे होते हैं चीज़ें, उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जब आप ओ लेवल्स या मैट्रिक में आते हैं तो कहते हैं वो ये कर लो, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर वो ए लेवल से कन्वर्ट हो जाता है या एफएससी में, ये कर लो बस, दाखिला हुआ ही हुआ, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब वो करके एडमिशन ले लिया, ओ भाई ग्रेजुएशन कर लो, बीएस कर लो, फिर तो नौकरी नौकरी याशी, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सब झूठ है, ये सब झूठ है, पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। आप पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा, ये मसला एक्सेप्ट कर लें। अगर आप अच्छा मास्टर्स करें तो मास्टर पढ़ के ही होता है, पीएचडी करें पढ़ के होगा, पीएचडी करने के बाद आओ पीएचडी हो गई, डॉक्टर साहब होंगे, नहीं नहीं आप पेपर भी लिखें, आप पेपर नहीं लिखेंगे तो आगे वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद कहें पोस्ट डॉक भी करें। अब ये सब कुछ के लिए आप किताब भी लिखें, ठीक है। तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कोई एक लिख रहा है आप नहीं लिख रहे, उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप जॉब करें तो नई टेक्नोलॉजी की पढ़ के सीखो, ये तो नहीं है कोई सिखाएगा थोड़ी, आप खुद सीखना होगा, पढ़ना तब भी पड़ेगा। किसी का कोड आ गया, कोड जो है हमारा प्रोजेक्ट है, इस कोड में चीजें ऐड करनी है, अच्छा उसने क्या किया पढ़ लो, जान नहीं छूटेगी। तो तरीका ये है कि अपनी स्किल्स इतनी अच्छी कर लें कि कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप उसमें इजीली आप उसमें छलांग मारे, आराम से डरे नहीं। मेन चीज़ है डरे नहीं, ठीक है, बाकी तो हो जाएगा मेहनत मेहनत करके। अगर शुरू से डरना शुरू हो गया ना तो फिर वो मसला हो जाएगा, तो अभी से नहीं डरे। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि असाइनमेंट्स हो, क्विजेस हो, प्रोजेक्ट्स हो, खुद से करें। कुछ होता है कि क्लास में तेज आदमी होता है, बच्चा होता है, साथ बैठ गया और उसके साथ बना लिया, ठीक है ना। होता क्या है, वो अपनी स्किल्स बना रहा होता है, आप कहते हैं चलो ये मेरा काम कर ले, वो अपनी स्किल्स बना के वो तो अपना काम कर लेगा, आप रह जाएंगे पीछे, ठीक है। अच्छा ये है कि आप कहेंगे नहीं ये काम मुझे करना है, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर योरसेल्फ। ओके। अच्छा दूसरा ये कि आप इनिशिएटिव लेंगे ना तो लोग आपको पसंद भी करेंगे कि यार ये तो रिलायबल आदमी है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली फिर आप ग्रुप्स जो बनेंगे, ग्रुप्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, इससे पहले कि कोई असाइनमेंट असाइन हुई या प्रोजेक्ट असाइन हो, खुद ब खुद एकदम से ग्रुप बन जाएगा, वरना भागते फिरते यार मुझे ग्रुप में रख दो, ग्रुप में रख दो। तो इसलिए आप इस तरह करें, तो अभी से करें तो आपके आगे की चल के स्किल्स अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। एनीवे, हम वापस को उस पर आते हैं। तो ये इंडेक्स उस पर सर्च कर लेता है। अच्छा ये अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट नेम, एक अब मैं नए डेटा टाइप्स पे आ गया हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये बार बार आउटपुट ना आए। फर्स्ट नेम इज जॉन, लास्ट नेम इज डो। लोग कहते हैं जॉन डो बड़ा पसंद है, असल में होता ये कि कोई वो आती है ना, नॉर्मली पुलिस में ये होता है कि कोई आदमी आ गया जिसको कुछ याद नहीं है अपना, या कोई लाश मिली, कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसको जॉन डो कहना शुरू कर देते हैं ताकि रेफर कर सकें किसका, ठीक है? तो उधर से जॉन डो ही आया है। कोई खातून होती है उन्हें जेन डो कहते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अ लिटिल फैक्ट। फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट, अभी बताया था कि इसमें आप कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं तो दोनों को ज्वाइन करते हैं और आपको रिटर्न करते हैं आंसर। अच्छा अब देखें ये है स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब देखें ये डबल कोट्स इधर भी है, डबल कोट्स इधर भी है, ठीक है। तो अगर मैं ये हटा दूं तो the computer will get confused and will think that this is the first string, but actually we want to keep this as part of the string. तो ऐसे में कोई स्पेशल करेक्टर है ना जो कि एक जिसको आप स्ट्रिंग का पार्ट रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो उसको कुछ और समझना शुरू है, तो आप ये बैक स्लैश इस्तेमाल करें। अब ऐसे बैक स्लैश इस्तेमाल करके ये इन्वर्टेड कॉमास है, इट विल मेक दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग,
ठीक है, और स्ट्रिंग पूरा इधर तक है। नॉर्मली तो जब आकर स्ट्रिंग शुरू होती है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होता है, यहाँ पे रुक जाता है ना स्ट्रिंग, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये इग्नोर हो जाएंगे। तो अब इसमें देखें तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द, उसको स्ट्रिंग का पार्ट बना दिया। अब स्लैश एन याद होगा, स्लैश टी याद होगा आपको, स्लैश एन से न्यू लाइन में आया था, स्लैश टी से आप टैब कर देते हैं, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं अवेलेबल। तो अगर कभी हाँ अगर स्लैश ही डालना है, ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड अ स्लैश, बैक स्लैश, तो उसके लिए आप डबल बैक स्लैश करें। Yeah, so the backslash is going to add the बैकस्लैश को ऐड करेंगे, डबल बैकस्लैश करेंगे, क्योंकि वो स्केप कर देगा उसके लिए, इन्हें स्केप करेक्टर्स कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें if everything is okay, it will add in backslash over here, your output, ठीक है। बैकस्लैश डाल दिया तो एक स्लैश है, मैंने दो डाल देते हैं, लिखा एक है, क्योंकि पहला बैकस्लैश है वो स्केप कर देता है उसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अच्छा सर, इज इंडेक्स ऑफ प्री बिल्ट फंक्शन, ठीक है, इट मींस दैट वन कैरेक्टर वैल्यू रिप्रेजेंट्स वन इंडेक्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने लिखा था कि लाइन कहाँ पे अपीयर करेगा, तो जहाँ जहाँ से अपीयर करता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पे एल आएगा, तो वहां पे दे देगा, ठीक है। हो सकता है लाइन नहीं लिखा होता, लिंट लिखा होता, तो लिंट को वो इग्नोर कर देता, वो लाइन को पूरा चेक करता, लेकिन लाइन कहाँ से हो रहा है स्टार्ट, तो वहां पे वो करेगा। अच्छा अच्छा, अब आगे आगे आ रहा है कि लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको मैं ए भी कर दूं। अब ये कह रहा है टेक्स्ट ए भी, ये एक मैंने टेक्स्ट बनाया है, ये पहले टेक्स्ट थिंग था, उसी को मैं ओवर राइट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए भी डाल दूँ, ठीक है। अब मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर टेक्स्ट डॉट कोड पॉइंट एट 0, इसका मतलब ये है कि इसके जो स्ट्रिंग है उसमें जो इंडेक्सेस है उसमें 0 इंडेक्स पे क्या चीज़ पड़ी हुई, ए पड़ा हुआ है। अब ए का कोड पॉइंट की बात करें, कोड पॉइंट का मतलब ये है उसकी एस की वैल्यू क्या है, ठीक है। हर मैंने आपको ऐसा बताया शुरू में कि हर आपका कैरेक्टर उसकी एक एस की वैल्यू होती है, ठीक है, कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनल मालूम करने के लिए आप टेक्स्ट डॉट कोड पॉइंट एट एक फलाने इंडेक्स पे क्या कोड पॉइंट है वो मालूम करने के लिए आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। तो ये 97 देना चाहिए इसे, नहीं दिया इसने, हाँ ये आया 97, ठीक है, 97 दिया हुआ है। तो आपका ए जो होता है 97 से स्टार्ट करता है, ठीक है। बी 98 होगा, सी 99 होगा, डी जो है 100 होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, आपने असाइनमेंट में किया होगा, ठीक है। तो जी स्पेस, स्पेस था, मैं स्पेस दिया, ठीक है। तो उस पर 32 है। अच्छा, अब हम ये ईमेल मेकर, हम इस search strings are immutable, how can we override, yes we will come to that, ठीक है कुंदन, we will come to that, ठीक है। अभी आप ये कह रहे हैं strings are immutable, immutable का मतलब है कि they cannot be changed, ठीक है, ठीक है। तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। आप ये कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग को जोड़ के उसकी जो वैल्यू एक नए स्ट्रिंग के अंदर आप डाल दें, या उसी स्ट्रिंग के अंदर दोबारा ओवरराइट कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग पूरा है उसके अंदर अगर ए की जगह आप बी को रिप्लेस कर, रिप्लेस करना, जैसा कि उमेर लिखा हुआ है, आप कहते हैं कि उमेर में आर की जगह में एन डालना चाहता हूँ, मैं उसको चेंज करके नहीं कर सकता, मुझे एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, उसमें सेव करना। आई कैन नॉट चेंज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे करते हैं अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ईमेल मेकर, ठीक है। ईमेल मेकर में आई पास द फर्स्ट नेम, आई पास द लास्ट नेम, आई पास द रजिस्ट्रेशन वैल्यू, कोई भी कोड है, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ उसकी। तो आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन ईमेल, इनटू एन आईबीए ईमेल, ठीक है। तो ये करने के लिए हम इस फंक्शन को चेकआउट करते हैं। फंक्शन देखिए आगे पास एफ नेम, जो कि उमेर में लिखा था,
एल नेम विच इज लास्ट नेम, खान लिखा था, आईडी जो आपकी आईडी है, ठीक है। तो मेरे पास आया ईमेल एफ नेम, तो मैं क्या करूँ, डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उमेर उमेर पूरा नहीं ले रहा, मैं सिर्फ पहला जो है उसका एलिमेंट वो लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं सब स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ। सब स्ट्रिंग का ये है कि मेरा पूरा स्ट्रिंग है, तो विच गोज फ्रॉम 0 to 4, बिकॉज उमेर 5 एलिमेंट्स है, 0 to 4 जाएगा, और मैं उसमें से सिर्फ पहली वैल्यू उठाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यू वो उठाओ, तो यहाँ पे मैंने वो 0 1 दी। अगर मैं UM उठाना चाहता तो मैं 0 2 कर देता। बाउंड्स बताने पर सब स्ट्रिंग से बताया ना कि सब स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक है। तो अगर वो स्टार्ट आपने 0 से किया और आपने उसमें 2 दे दिया, तो मैं UM उठाऊंगा। अगर 1 करूंगा तो मैं U उठाऊंगा, ठीक है। ये मैंने बाउंड्स दे दिया। तो 3 4 नहीं, अगर 5 का है 3 4, 4 का है तो 2 3, ठीक है। तो आप इस तरह उठा सकते हैं। तो एफ नेम जो भी आया उसमें से मैंने पहला उठा लिया। याद रखें कि यू मेरा कैपिटल था, ठीक है। तो ई में हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। ये था एल नेम में मैंने एस उठा लिया, ठीक है। आईडी को मैं एज इट इज ले लिया, आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, ठीक है। वो पहले से स्ट्रिंग है। अगर वो इंटीजर वैल्यू होती तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में, और फिर मुझे करना पड़ता अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं या 1000 कैपेसिटी है, तो उसमें फिर मैं अगर वैल्यू 1 है तो उससे पहले मुझे 3 0 लगाने पड़ेंगे, ये तो वो चेंजेस करनी पड़ेगी। मैंने उनको अभी ओवरराइड किया हुआ है। वो एक अच्छी एक प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल टू कीप थिंग्स सिंपल मैंने आईडी कर। और आप लोग ऐड कराची.ib यही होता है आपका ईमेल, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक। तो ये स्ट्रिंग मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा। सो आई विल गेट द फर्स्ट लेटर of f name, I'll get the first letter of L name, I'll get the ID as it is, and I will attach at karachi.ib.p, ठीक है। and just to तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने आखिरी कैरेक्टर उठाना है, पहले आप उसकी लेंथ लेंगे, स्ट्रिंग देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में सब स्ट्रिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। उसमें जो मैं कहता जो इंडेक्स उसका जो मैं आपको दिखाया था रेफरेंस पूरा इतने लंबे है, उसमें हो सकता है हो, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है नहीं होगा, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग दिया ही इसलिए हुआ है कि आप हर जगह पे अप्लाई करें। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आखिरी क्या लेंथ -1, उससे पहले लेंथ -2 कर देंगे, तो लेंथ -2 और लेंथ -1 के दरमियान से उठा लेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक। तो हाँ, अब आगे पास जो भी आगे पास ईमेल बनी, एंड जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज स्मॉल केस, मैं उसको 2 लोअर केस कर दूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे पास ईमेल बन के आया वो 2 लोअर केस के उसको रिटर्न कर दूँ, ठीक है। तो ये एक नया स्ट्रिंग बनाएगा, उसको लोअर केस करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो जिसकी वजह से मेरे पास UK 0153 एट ये आ गया, ठीक है। तो ये नजर नहीं आ रहा था, उधर आ जाए। तो ये हमारा सब स्ट्रिंग नहीं समझ में आया, अच्छा। आज मेरा माउस नहीं है, तो मैं माउस पैड से काम करूँ। अब आप लोग कहेंगे क्यों सवाल किया, नहीं कर रहे हैं सवाल, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। और ऑब्वियसली मेरी अच्छी ड्राइंग स्किल्स, माउस पैड की मेरी प्रोफिशिएंसी का पता चलेगा कितनी है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब मैं जो है C A R A E, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या है, स्मॉल स्ट्रिंग, सब हमेशा स्मॉल के लिए कहते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग, तो अगर मैं सब स्ट्रिंग लिखूंगा 0 1, मैं जो लिखा हुआ था, तो 0 से स्टार्ट करेगा और 1 तक जो सब स्ट्रिंग होगा वो उसको उठाएगा, ठीक है। 1 तक उठाएगा, 1 को नहीं उठाएगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 तक क्या बीच में एक ही कैरेक्टर आता है जो कि 0 पे आता है। अगर मैं लिखूंगा सब स्ट्रिंग 02, तो 2 तक
जो कैरेक्टर्स हैं सब स्ट्रिंग है वो उठाएगा, तो वो सी और ए को उठा देगा। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि सब स्ट्रिंग 0 3, तो 3 तक जितने भी हैं बीच के वो सब स्ट्रिंग उनको उठा देगा। ठीक है, फिर आपको ये कि मुझे मैंने तो 0 4 करूँ तो क्या होगा भाई, 0 4 करने की जरूरत ही क्या है, पूरा स्ट्रिंग लिख दें उसे, पूरा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो 0 3 तक आप कर सकते हैं कि आपके पास सब स्ट्रिंग आप निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली है। तो सब स्ट्रिंग 0 1 कर रहे हैं, तो सब स्ट्रिंग 0 1 का मतलब ये 0 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ। अब 1 को इंक्लूड नहीं करते तो सिर्फ आपके पास जो इनपुट वैल्यू है वो सी आ जाएगी। तो हमने जो पूरा नाम था उसमें से, उमैर नाम था, उसमें से यू उठा लिया था। ठीक है, ए की जगह मेरे ख्याल में 2 से 3 4 करके देखेंगे, लेकिन 3 4 पे शायद वो गड़बड़ कर दे, शायद गड़बड़ कर दे। वील हैव टू चेक दिस आउट, तो वो चेक करना पड़ेगा। 4 4 5 है, 4 और 5 आप करके देखते हैं, फिर इसका मालूम करना पड़ेगा कैसे निकालेंगे। बल्कि आखिरी लेना तो फिर तो सब स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है ना, इंडेक्स लगा दें, तो वो तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं। वैसे उसने निकाला नहीं निकाला, एरर तो नहीं दिया था, इसका मतलब है उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं आ गया। ठीक है, उससे काम चल गया, लेकिन इट मेक्स मोर सेंस टू यूज इंडेक्स अगर आपने आखिरी कैरेक्टर लेना है। ठीक है, सब स्ट्रिंग में उसने काम कर दिया, इवन दो जैसे इंडेक्स डिड नॉट एग्जिस्ट उसने कर दिया। ठीक है, अच्छा सेट है, समझ आ गया। अच्छा सेट है, सट्टे, मगर सट्टे क्या, पाइथन का स्लाइस वाला फंक्शन है। पाइथन का स्लाइस कह लें आप, हाँ जी, मुझे बेसिक मैं नहीं बताया, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, अब हम अगले फंक्शन पे आते हैं। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन, ओके प्लीज पे अटेंशन। अगले फंक्शन पे हम आते हैं, है कि कैरेक्टर नेम, देखिए कैरेक्टर एरे में बनाया, उसका नाम रखा है नेम, और मैं कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम डॉट टू कैरेक्टर एरे। तो ये क्या करेगा, पूरा कैरेक्टर एरे बनाएगा, उसको कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक, हमने इंटीजर एरे पे काम किया हुआ है, कैरेक्टर एरे इज जस्ट द सेम, इट जस्ट स्टोर्स कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्क ये कैरेक्टर एरे में, कैरेक्टर एरे जो होता है म्यूटेबल होता है, यानी इट कैन चेंज। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्ट्रिंग को लेकर उसके अंदर चेंजेस करनी है, आइदर यू मेक अ न्यू स्ट्रिंग or you take the same string, convert into character array, make changes and convert it back to into a string। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब जैसे कि इसमें मैंने किया हुआ है कि देखिए अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो था स्ट्रिंग था। ठीक, तो यहाँ पे वो 0 मुझे वैल्यू उठाने ही दे रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को एज अ कैरेक्टर एरे वो ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रिंग को अगर आप कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करें तो उसको वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट नेम जो था उसको क्या वैल्यू थी, उप्स, फर्स्ट नेम जॉन था तो इसने जे उठा दिया। ठीक है, तो इसने करेक्टर वैल्यू दिया। ठीक है, तो फर्स्ट नेम जॉन था, तो जॉन को इसने नेम में कन्वर्ट किया, और उसको हमने जब आउटपुट लिया तो हमारे पास जे आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन नेम, नेम जो था कैरेक्टर एरे था, उसको मैं प्रिंट एलन के बिल्कुल उसी तरह उससे प्रिंट किया जिस तरह के वो एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। और जब मैंने कहा मैं जीरोथ लोकेशन मुझे प्रिंट करके जीरोथ इंडेक्स में निकाल के, तो उसने जीरो इंडेक्स में निकाल के दे दिया। ठीक है, लेकिन ये उसने स्ट्रिंग को नहीं कुछ किया। ठीक है, स्ट्रिंग का जीरो लोकेशन उसने नहीं उठा के दी। ठीक है, तो अब आप स्ट्रिंग के अगर आप फॉर लूप लगा के स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके उसके अपने फंक्शंस हैं, उनके जरिए कर सकते हैं, इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अपने फंक्शंस फिर आप इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन नेम जो है वो तो पूरा नेम हो गया ना आपका, जो भी फर्स्ट नेम था, ठीक है। और नेम जीरो, जो नेम जो होता है, इट्स ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ करेक्ट। हाँ उसी तरह होगा, जे ओ एच, जैसा स्ट्रिंग में स्टोर होता है, जो स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो अंदर से करेक्ट एरे में ही सेव कर रहा होता है। ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ करेक्ट एरे कर देते हैं फॉर कैरेक्टर्स, इंटीजर में नहीं करता, ठीक, फॉर कैरेक्टर्स ही करता है, ठीक है। तो उसमें ये है जावा के साथ, ये सी प्लस के साथ भी है कंफ्यूजन, ठीक है, तो ये करता है। तो ओके, रेंडमाइजर एक फंक्शन था जो कि मैं पहले काम कर रहा था, फिर मैंने उसको निकाल दिया, तो मैं कहा उसको अब नहीं डाला इसके अंदर, ठीक। अब अब हम दो एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। एक है कोडिफाई और एक है फनी स्ट्रिंग, ठीक है। कोडिफाई जो है ना वो अगर आपको उसका कोड ब्रेकिंग, कोड्स, चीज़ों को कोड करना, ठीक है, उसका अगर आपको शौक है, जो होता है ना, जैसे कि अरे वो देखिए इमिटेशन गेम, ठीक है, उसमें वो कोड ब्रेक करते हैं ना, कंप्यूटर पहली बार बनाते हैं, तो ट्यूरिंग का उसमें था, एलन ट्यूरिंग, तो वो, तो उसमें जो वो यूज़ करते हैं एनिग्मा, जो मशीन जो यूज़ करते हैं एनिग्मा कोड, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है, हम जो बना रहे हैं वो तो उसका कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ राइटिंग समथिंग अ कोडेड मैसेज, ठीक है। तो कोई आपने मैसेज भेजना है और आप चाहते हैं कोई और पढ़ ना सके उसे मैसेज को, तो आप उसको, एक और तरीका ये है, अपना कोड बनाएं और उसको उस हिसाब वो दूसरे को ही वो पर्ची दे दें, और आप जब आप भेजें तो वो उस पर्ची को देख के इसको डिकोड कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ना सॉफ्टवेयर बनाएं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो जो काम आप हाथ से लिख के करेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए काम कर दे, वो कोड कर दे उस मैसेज, वो स्ट्रिंग उसको भेज दें, तो स्ट्रिंग मिलेगा, वो अपनी पर्ची पे बैठ के उसको कंपेयर करेगा और लिख लेगा। तीसरा तरीका ये है कि आप उसको कोड करें, उसके पास डिकोड का फंक्शन होगा, डिकोड फंक्शन में स्ट्रिंग डालेगा, ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाएगा। तो आज मजा आएगा, ये काम आप करेंगे अपनी लैब में, क्योंकि मैं तो सिर्फ कोडिफाई दे रहा हूँ, आपने डिकोड का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, तो है क्या कि कोडिफाई फंक्शन काम कैसे करते हैं, हमारे पास कोडिफाई एक हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हम जो टेक्स्ट है वो पास करें, एक नंबर पास करें, नंबर नंबर है क्या चीज़, नंबर क्या करें, हम उसका कोड को देख लेते हैं। नहीं, ये है कोडिफाई स्ट्रिंग आ रहा है, टेक्स्ट और नम आ रहा है उसका, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने लेंथ लिया, विच इज टेक्स्ट डॉट लेंथ, एंड कैरेक्टर डेटा इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, और उसको हमने डेटा का हमने एक वो बना दिया, एरे बना दिया उसी लेंथ का जिस लेंथ का ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, तो जो स्ट्रिंग लिया उसका हमने लिया कोड पॉइंट एट आई, ठीक है, फॉर लूप लगाया आई से 0, और हम कह रहे हैं कि हर इंडेक्स पे क्या कोड पॉइंट, हमने अभी मालूम किया था, कोड पॉइंट जो है आपको वो देता है, एस की वैल्यू देता है, ठीक है। तो जो भी वो एस की वैल्यू दे रहा है उसमें हम ये नम जो हमने ऊपर पास किया इसको ये ऐड कर दें, तो 97 जो है 98 हो जाएगा, 98 जो है 99 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए बी सी था, सिर्फ कोड आने में था ए बी सी, तो 97 98 99 है, तो उसकी जगह 98 99 100 हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, नाम की वैल्यू 1 है इन दिस केस, ठीक है। तो और फिर एक मैंने सिंपल चेक लगाया हुआ है कि चूंकि हम z जो है 122 है, या z कहते हैं, ठीक है, तो z जो है 122 है, तो जब उसमें आप ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, विच विल गिव यू अ ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट जो है वो मैं नहीं चाहता कि ब्रैकेट है, मैं चाहता हूँ कि वो a आ जाए उसकी जगह, ठीक है, z की जगह a आ जाए, a की जगह b आ जाए, b की जगह c आ जाए। तो मैं चेक लगाया हुआ कि वैल्यू इज ग्रेटर 122, तो जो भी वैल्यू है फर्स्ट के 123 हो गई, ठीक, 123 माइनस 122, तो 1 आएगा, 1 प्लस 96 तो 97 होगा, विच विल बी ए, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं डाल दें, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। दिस इज जस्ट अ चेक कि मैं z की जगह ए लाना चाहता हूँ, नथिंग एल्स।
फिर जो भी वैल्यू आई उसको मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और उसको मैंने डेटा इन के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अगर 97 थी तो 97 को वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। अब 97 चूंकि इट्स एन एस्की वैल्यू, उसको जो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ए आ जाएगा और ए जो है मैं इस डेटा आई के अंदर स्टोर कर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, एक कैरेक्टर एरे दिया, स्ट्रिंग के मैं एक एक इंडेक्स पे किया, उसकी एस की वैल्यू ली, एस की वैल्यू को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, एस की वैल्यू में ऐड करके मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और फिर कैरेक्टर को मैंने उस कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कर। तो ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, आई एम आइटरेटिंग एंड आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग एंड पुटिंग इट इनटू अ कैरेक्टर एरे। तो एक कैरेक्टर एरे पूरा पूरा बन रहा है, स्ट्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और कैरेक्टर एरे पूरे का पूरा बन गया। ठीक? और उसके बाद मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया विच वाज क्रिएटेड। ठीक है, और मैंने कहा न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे डेटा पास कर दिया। तो मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना रहा हूँ, देखिए अब क्लास है ना, अब देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब आपको ये पता चला कि कंस्ट्रक्टर क्यों पढ़ाया, तो इसलिए पढ़ाया था कि अब ये जब हम करें तो आपको समझ में आया कि भाई हम कंस्ट्रक्टर में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये न्यू स्ट्रिंग लिखा, तो चूंकि ये क्लास है, कंस्ट्रक्टर से कॉल किया और उसके अंदर हमने डेटा पास कर दिया। ठीक, डेटा क्या था, डेटा दिस कैरेक्टर एरे था, तो ये पूरा पूरा एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा विच विल बी बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर एरे। और फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो इट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। तो अगर हम फंक्शन इसके ऊपर जाएं, फंक्शन को देखें तो देखें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग कर रहा है। तो इस फॉर्म में मैं एक कैरेक्टर एरे भी पास कर रिटर्न कर सकता था अगर मैं करना चाहता हूँ। तो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग को ही मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट वाज न्यू स्ट्रिंग, भाई ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप क्लास का जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आप न्यू करके डिफाइन करते हैं। वी कवर्ड दैट इन द क्लासेस लेक्चर। ठीक है, अगर आप उसमें हमने स्टूडेंट बनाया तो हमने कहा था स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो एक तो इन्होंने आसानी रखी है, आप स्ट्रिंग करके कोई नाम दे दें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या स्ट्रिंग का नाम देकर आगे इक्वल टू करके कर दें। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास पहले से अगर करेक्टर एरे मौजूद है, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो फिर मैं स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, उसमें ये वैल्यू पास करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये फंक्शनैलिटी है जावा की जो दी हुई है। तो अब स्ट्रिंग मेरा बन गया और अब उस स्ट्रिंग को मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगा वो कोडेड स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो I can run this, but it will be very, very difficult for me. I'm just kidding. हम इस पे आ जाते हैं कि टेक्स्ट है, चाहिए ए बी टेक्स्ट था ना, हमें ए बी टेक्स्ट पास किया इसके अंदर, इसमें हमने हाँ ए बी पास किया है। तो इसको लिख देते हैं दिस इज माय कोडेड मैसेज। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसमें कैपिटल्स में लिखा है ना, कैपिटल्स को मैंने वो नहीं किया हुआ है, मैंने उनका ख्याल नहीं रखा हुआ। ठीक है, और स्पेसेस का भी मैंने ख्याल नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं खाली स्पेस की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ठीक है, और कैपिटल्स की जगह वो टी में उसने जो भी ऐड किया, वन टी यू होता है, टी यू। ठीक है, तो टी के बाद यू आता है, तो इसलिए इसने इसको यहाँ पे यू लिख दिया, वन टू दैट। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि if value is equal to 122 and value is not equal to 32, अब स्पेस को एज स्पेस रहने देगा। ठीक है, तो ये कर देता हूँ और मैं अपना इसके अंदर जो कैपिटल्स है उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स। मैं इसको रन करूँ, अरे हो गया, क्या गलती कर दी मैंने। हाँ प्लस तो हो ही रहा है, हाँ वो मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, हाँ सही है सही है सही है। तो एक्स प्लस में कहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ ना, हाँ ऊपर कर रहा हूँ, गलत जगह डाल दिया।
इधर करना था यहाँ पे। इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 32, तो इंट वैल्यू इसमें एरर दे रहा है, तो हम इसको करते हैं कंट्रोल सी, इंट वैल्यू इधर डिफाइन कर देते हैं और इंट यहाँ से हटा देते हैं। स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। तो अब होपफुली इट विल वर्क फाइन। नहीं ये तो किसकी, ओहो इसकी करनी है ना, ये गलत कर इफ ये करनी है हमें, गलत ये इधर चेक करनी है। ये वैल्यू अगर 32 नहीं है तो फिर ये इसको ऐड करेगा और वैल्यू में स्टोर कर देगा। होपफुली दिस विल वर्क, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक। अब ऑब्वियसली कोई इसको देखेगा तो वो इसको देख के पैटर्न्स में समझ जाएगा कि पैटर्न्स क्या है, ठीक है। तो इसको पैटर्न 2-3 दफा देखेगा कि किस तरह है, कोशिश करेगा तो पैटर्न्स में निकाल देगा, ठीक है। लेकिन यही स्ट्रिंग आप बदल सकते हैं कि यहाँ पे नम की जगह ना, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था, मैं इसको 2 कर दूं तो ये स्ट्रिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने अपना जो कोड, जो भी मैसेज था उसको हमने कोड कर दिया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी 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 बेसिक फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन, ठीक है। तो आपके जो पूरी जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर चलती है, इंक्रिप्शन की। साइबर सिक्योरिटी भी इन अ वे, ठीक है, चलती है। तो यस ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई है, तो बहुत छोटा काम है अभी। तो होता ही है कि आपस में जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे थे, क्योंकि रेडियो सिग्नल हर जगह फैल जाते हैं, ठीक है। आपने एक मैसेज भेजा, वो दूसरे ने कैच कर लेगा वो उसे, तो फ्रीक्वेंसी उन्हें पता होती है, वो चेक सुन रहे होते हैं। तो जब भी मैसेज आता है तो उसमें वो उसको कैच करके उसे डिसाइफर करना शुरू कर देते हैं। ये तो मकसद ही ये होता है कि हम उनके कोड को डिसाइफर करें, वो हमारे कोड को डिसाइफर, तो ऐसा सिस्टम आप बने। तो उसमें भी यही था कि इट्स ऑल द गेम ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। तो इफ यू हैव सीन इमिटेशन गेम, अगर देखी है तो उसमें पैटर्न्स की बात होती है, और उसमें वो यही, उसमें जाए पॉइंट पे आके यही कहता है कि कुछ जगहों पे हमने चीज़ों को होने देना, हमने नहीं बताना कि हमें पता था, क्योंकि अगर आप हर जगह अगर जर्मन अटैक करना शुरू कर दें, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हर जगह जर्मन अटैक करना शुरू कर देते हैं और हर जगह ही उनके अटैक फेल हो रहे थे, तो कहते हैं भाई हमारे कोडिंग मैसेज में गड़बड़ हो, तो कहीं कहीं उन्हें सक्सेस भी देनी है। तो फिर उसमें फिर कैलकुलेशन आई थी नंबर्स की, कितने लॉसेज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। एक्चुअली तो कोई लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, एनी लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें टू विन द वॉर इट वाज इम्पोर्टेंट कि कुछ लोगों को कुर्बान कर दो, ठीक है। दे विल डाई बिकॉज द लॉसेज आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट मारी जाएगी दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्या उसके बगैर ही हमारे मेन चीज आपकी ना मारी है, तो ये सारा फिर ये गेम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो ऊपर बैठे हुए होते हैं इट्स नॉट इजी कि डिसीजन ली जाए। ओके, अब आ गया हमारे पास फनी स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस इज अ फनी स्ट्रिंग, ये देखें ये लिखा है दिस इज अ फनी स्ट्रिंग, इस तरह का आउटपुट दे रहा है, ठीक है। कि आपने कुछ भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको ये फनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, सही है। अब आपको एलीट लैंग्वेज लिंगो का पता है कि नहीं पता, एलीट, ठीक है। तो वो भी शुरू हो गई थी, एक ज़माने में हुई थी, काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। तो उसमें उन्होंने एलीट लिखना होता था ना, एलीट, तो वो लिखते थे यूँ 7-1 नहीं 3-3-1-7, ये एलीट होता था, ठीक है। ये 3 जो है एक तरह से ई लगता है, उल्टा ई है, ठीक है। एल और 1 एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। और टी जो है, ये 7 जो है वो टी की तरह लगता है, टेढ़ा सा टी करना है। तो ये एलीट लिंग हो गई थी उनकी, कि अब एलीट लिखने की वजह वो ये लिख देता है, ठीक है। तो वो नूब का पता है, नूब,
गेमिंग में कहते हैं नूब, के जिसको खेलना नहीं आता नूब कहते हैं, तो उसको वो लिखते थे भाई नूबी होता था, वो लिखते थे नूबी, नूबी, तो यूँ लिखते थे, तो वो नूबी कोई पढ़ता नहीं, कोई ऐसा नूब पढ़ता था, वो नूब मशहूर हो गया था। बेसिकली दे वर राइटिंग नूबी। तो ये लिंगो शुरू हो गई थी, जो कि ना इसे मैं एलीट लिंगो कहते हैं, वो शुरू हो गई थी। तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग लिखें, उसको आप एलीट लिंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है इसमें। अच्छा, बेनेडिक्ट कम्बरबैच का कोई फैन है, तो ठीक है। जी जी, जो बाइडन को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, तो भाई कोडिंग वाला बाद में समझाएंगे, हम आगे का कर लें पहले, कोडिंग वाला फिर बाद में समझेंगे। अब फनी स्ट्रिंग है, उसमें क्या करता है, मैंने एक स्ट्रिंग पास किया टेक्स्ट, अगेन उस टेक्स्ट को मैंने एक करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप क्या करे, इन रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट करे, ठीक है, क्योंकि मैं हर करेक्टर को मुझे नहीं करना, मुझे किसी किसी करेक्टर को चेक करना है, ठीक है। और मैं करता हूँ कि इफ रैंडम इज ग्रेटर देन 4 एंड डेटा आई इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया, जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, अगर मैं कर दूँ फर्स्ट के मैं 7 से ज़्यादा करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी मैंने कम कर दी है। 4 से ज़्यादा तकरीबन हाफ प्रोबेबिलिटी है, 2 से ज़्यादा तकरीबन 75 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसको, तो मैं इसको चेंज करूँगा, तो जितनी मैं इसको चेंज करूँ उस हिसाब से स्ट्रिंग उस तरह चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कर लेने के लिए कितना प्रोबेबल है कि वो करेगा, तो उतना इसको मैं उतना ही रिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं 100 से कर दूँ तो फिर ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास एक नंबर जनरेट हो, मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, वो जो रैंडम आ गया, ठीक है, फर्स्ट करेंगे 6 आ गया, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड लगा रहा हूँ। और वो जो एल्फ, वो जो वो है जो करेक्टर जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, स्पेस नहीं, ठीक है। आगे चल के तो डॉट भी आ जाएगा ना, क्योंकि डॉट को तो कैपिटल करते नहीं है, तो पीरियड हो जाएगा, कॉमास, वो सब आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोड। अभी के लिए मैं स्पेस को कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर वो एक तो ये कि 4 से बड़ा है जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, और जो जो मेरे पास स्ट्रिंग में जो वैल्यू है वो स्पेस नहीं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन, तो ऐसे में क्या करूं कि मैं जो भी कैरेक्टर वैल्यू है उसको मैं पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूं, जिससे मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। अब एस की वैल्यू जो भी आएगी उसमें मैं 32 ने माइनस करूंगा। 32 इसलिए माइनस करूंगा क्योंकि जो आपका जो कैपिटल ए है वो 65 से स्टार्ट होता है, तो 97 है, 13 निकालेंगे तो बनेगा 67, उसमें 2 माइनस करें 65। तो कैपिटल ए को आपने कन्वर्ट करना, स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करना, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम इट, ठीक है। तो जो भी अल्फाबेट है आएगा उसमें से मैं उसकी एस की वैल्यू ली, उसमें 32 माइनस किया, उसको दोबारा मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये उसको ये कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। तो अभी अब एक रैंडम रैंडम एलिमेंट आ गया, साथ साथ में जो भी अल्फाबेट है उसको ये कैपिटल कन्वर्ट कर देगा, और फिर आगे चल पड़ेगा। इस वजह से आगे पास इसने जहां जहां पे आपको कैपिटल नजर आ रहा है, तो इसने क्या किया कि उसकी ये चीज वहां पे ट्रू हो गई, ये कंडीशन, तो ये उसने वहां पे उसको कैपिटल्स में कर दिया। और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको ये कर दूं, तो अब जो स्ट्रिंग मेरे पास प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा उसमें कैपिटल्स आएंगे, ठीक है ना, ज्यादा कैपिटल्स आना शुरू हो गए। मैं कम करना चाहता हूँ तो इसको मैं हर बार अलग अलग रैंडम है ना, हर बार अलग अलग आएगा, तो इसको मैं 8 कर दूं तो कम हो जाएगा, ठीक है ना, काफी कम हो गया, ठीक। 9 कर दूंगा और कम हो जाएगा। तो ये मेरी मर्जी है मैं कितना इसको रिफाइन करना चाहता हूँ, कितना मैं इसको फनी रखना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो तो ये एक छोटा सा वो था, एग्जाम्पल थी कि कैसे आप, ठीक है, और तो लेक्चर पूरा होने वाला जो, ठीक है, बचत हो गई। तो इस तरह आप जो है ये, अब आपने देखा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, स्ट्रिंग आगे पास आ जाए तो आपने उसके अंदर उसके चेंजेस करनी है स्ट्रिंग इटसेल्फ, तो आपको
कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक, तो ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मुझे दूसरी एक्सरसाइज तो याद नहीं है, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये है कि आपने जो आपको कोडिफाई का जो मैंने आपको दिया हुआ है आपने उसको डी कोडिफाई, ठीक है, कि आपने वो सीखो कि अच्छा हाउ कैन वी कन्वर्ट अ कोडेड स्ट्रिंग इनटू एन ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे कोडिफाई को यूज करके आप एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जिसका आउटपुट है वो आप अपने डिकोड के अंदर डालेंगे तो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे पब्लिक प्राइवेट की एक चीज है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे, एन्क्रिप्शन। तो इस केस में जो वन है वो आपकी तरह की है। ठीक है ना, आप किसी को वन बता देंगे तो वो फौरन से डिसाइफर कर देगा, वरना आपको इसको, वरना क्या तरीका है, वरना तरीका ये है कि वो जीरो से स्टार्ट होगा, नंबर्स डालता रहेगा जब तक कि आपके पास एक सही आउटपुट ना आ जाए। ठीक है, तो वह करेगा। तो आगे जो पासवर्ड्स होते हैं उसमें भी यही होता है कि वो मैच करते रहते हैं कि कौन सा है, तो हाँ, तो वो ये ब्रूट फोर्स करके ना सब कुछ चेक करते रहते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि तभी वो आपसे कहते हैं कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, कैपिटल है, लेकिन जितने ज़्यादा आप उसमें उसमें वेरिएशन डालेंगे तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसे क्रैक करना। और जितना लंबा कर देंगे, आपने एक अल्फाबेट भी लंबा कर दिया, कहते हैं 8 का होना चाहिए, अब 9 कर दें तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, 8 इज जस्ट अ सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, तो अभी आगे जब 64 बिट इंक्रिप्शन है तो उससे उसका फायदा ये है कि उसको डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकते, सुपर कंप्यूटर भी किसी लेवल पे जाके कर लेते हैं, लेकिन अब बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कोई अगर आगे पीछे पड़ा हुआ है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और आपने अगर उसको भी जो पासवर्ड है 15 कैरेक्टर्स का दिया हुआ है तो फिर उसको सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा उसको क्रैक करने के, हर एक के पास नहीं होगा सुपर। ठीक है, मे बी यूएसए के पास होते हैं, तो इसलिए वो ये काम करते रहते हैं। तो अब वो जो चीज़ है, क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना है, क्वांटम कंप्यूटर, तो ये सब चीज़ें वो क्वांटम कंप्यूटर उनको फारिग कर देगा। तो यहाँ जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया तो whoever has a quantum computer he is going to decrypt everything। ठीक है ना भाई, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, आपको नए किस्म की इंक्रिप्शन लानी पड़ेगी। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है इट्स अ गेम चेंजर, आपकी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। खाली आप पढ़िएगा उसके ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये वो समझ में नहीं आया कि कोडिफाई कैसे काम करता है। तो कोडिफाई में सिंपली ये कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट जो है, बस टेक्स्ट पास किया, हमने उसकी लेंथ ले ली, लेंथ इसलिए ले ली ताकि हम जो कैरेक्टर एरे डिफाइन करेंगे उसकी वही लेंथ होगी जो कि स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर। फिर हमने पहले चेक लगाया, ये पहला इफ ये चेक करता है कि जब स्ट्रिंग को हम ट्रेवर्स करते हैं कोड पॉइंट ऐड, तो ये जो है ये टेक्स्ट जो भी हमारे पास हुआ था तो वो चेक कर रहा है कि फलाने कोड पॉइंट में क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू 32 है, इसका मतलब है स्पेस है, तो ये उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर 30 नहीं है तो फिर अगर 32 वैल्यू नहीं है तो ये उसमें नम ऐड कर देगा, नम इन दिस केस वाज 1। तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे पास अगर वैल्यू जो है वो 122 से ज़्यादा आएगी तो फिर ये इसके बाद थोड़ा सा एक कोड लगाया हुआ है जो कि क्या करता है कि 123 है तो उसको वो ए में कन्वर्ट कर देगा, 124 है उसको बी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये कोड ये काम कर रहा है। लेकिन अगर उससे कम है तो ये कोड नहीं चलेगा, डायरेक्टली उसमें नंबर ऐड कर देगा। तो फिर जो जो भी नंबर आएगा वो डेट विल गिव यू एन एस की वैल्यू, उस एस की वैल्यू को आपने करेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट किया। जो एस की वैल्यू करेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स अ करेक्टर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो करेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हमने डेटा आई के अंदर डाल दिया। तो हमने एक नया जो डेटा आई के अंदर जो हमने करेक्टर एरे बनाया था उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करना शुरू कर दिया। और फाइनली हमने उस करेक्टर एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो स्ट्रिंग का नाम था कोडेड उसको हमने रिटर्न कर, तो आगे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो समझ में आया, जब अब ये हमने कर ही लिया तो अब हम लैब मैंने नहीं उठाई थी, लैब को मैं शायद उठाना भूल गया। इसमें रिसोर्सेज, लैब्स, लैब 15 हो गई है, 15। तो इसमें तो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि
कोडिफाई आपने उसको ऑब्वियसली यू हैव टू डिकोड, कोडिफाई को यूज करना है। फिर दूसरा जो आपने एक स्ट्रिंग बनाया 1A 2B 3C 4C, पैटर्न है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से बनाना है। और फिर तीसरी एक्सरसाइज है कि चेक्स इफ द करंट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम कहते हैं कि जिस तरफ से भी पढ़ लें वो सेम बनता है, जैसे रेडार है RADAR, इस तरफ से पढ़े रेडार बनेगा, उस तरफ से रेडार बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक तीसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये बस 3 एक्सरसाइज हैं आज की, तो आपने ये करनी है, तो इट विल टेल यू वेदर सर्टेन इज पैलिंड्रोम, ठीक है। दैट्स इट। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर लें। एक सवाल आया हुआ है चैट पर, एक्सेट्रा एक्सेस नहीं हो रहा। अच्छा, मैं शायद उसकी एक्सेस नहीं हो, एक्सेस शायद प्राइवेट हो गया, मैं चेंज कर दूंगा उसको। Okay then, so this is the end of the lecture. Thank you.